Good morning. Kindly show your presence so that we can start the class. I can see two faces. Good morning, Kundan. Good morning, everybody. Good morning, Bhavna. Good morning, good morning, Swati. Okay, today you need to attend the class very seriously because I'm not going to upload it on YouTube. Okay, and it's just I have started this pony. Can you see my pony? Because the hair has really gone. They have got their length, and now I have no other choice other than to have a pony. Okay, let us start the class. Yeah, I'm not feeling well for last 2 days. Again, this allergy, this cold and cough, it's not exactly corona. Yeah. Okay, let us start. चलिए सबसे पहले let us start with this literary theory and criticism. First of all, that we have been assigned 3 particular units for literary theory and criticism. Okay, so the students who are already experienced and have been appearing in this exam again and again, they know well that there are different theories. Clear? Thank you, Swati Parik. And uh, those who are first time appearing or say recently have started their preparations, or those who are already in past their post graduation and just have appeared in this kind of exam or trying to appear, they should know that literary theory and criticism is exactly something yeah, it is ponytail. Pony, I can't show you. You need to see it this way. Even I am feeling a bit comfortable with this pony. I think I don't feel very cautious about my hairstyle and all. Yeah, अब हम पढ़ाई करते हैं. Okay, let us not talk about my hairstyle more anymore now. चलिए सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए. अच्छा, सबसे पहले मैं 2-3 बातें बता देता हूँ that till the beginning of 20th century, okay, till the beginning of 20th century, we had different approaches of literary criticism. Okay, and literary criticism as such is something which can very lightly be taken. Okay, it is only in last 30 to 40 years that they have made a complete noise of this literary theory and criticism. As such, literary theory and criticism have always been a part and parcel of literary studies and literature. Wherever a writer is there, for example, I would like to draw your attention. जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोई नई चीज है, I do agree that of late theories have been emerging. Everybody is coming up, हाँ, डिफरेंट फोटो चल जाएगा सुनील निषाद जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, आपकी डिफरेंट फोटो चल जाएगी फोटो कार्ड के ऊपर, बस वो बहुत डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वो आपके जुड़वा भाई की नहीं होनी चाहिए, वो आप ही की फोटो होनी चाहिए, लग जाएगी. ओके, डोंट फील नर्वस अबाउट दैट. सो मैं बिना आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए मैं फटाफट से अपनी स्टडी बताता हूं आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज. लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पिछले 30-40 सालों से वेस्टर्न कैनन में, या ऐसे मान लीजिए कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर दे हैव स्टार्टेड गिविंग इट अ लॉट मच इंपॉर्टेंस. ओके, अब एक मजाक भी आजकल उड़ाया जाता है कि कोई भी लिटरेचर का जो टीचर है, इफ ही इज नॉट अवेयर अबाउट डेरिडा, देन आई थिंक ही कैन नॉट राइट एनी रिसर्च पेपर. बट इट इज नॉट, because I have seen many different teachers, great professors, who say that there is no need to link. Okay, literary criticism means what you understand of something, clear, and what you find that that a piece of literature can give a message. Okay,
बट अगर एक बार के लिए अगर हम द बेसिक ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी क्रिटिसिज्म की करें, देन वी हैव इम्प्रेशनिस्टिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वी हैव आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वी हैव स्ट्रक्चरलिज्म, वी हैव कल्चरल मटीरियलिज्म, वी हैव मार्क्सिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर, वी हैव psychoanalytical approach to literature, we have feministic approach to literature, we have queer approach to literature, we have deconstructive approach to literature, we have a post-structuralist approach to literature, we have new historicist approach to literature. Okay, we have racial, or say we can approach a text from the racial discrimination also. Clear? So it depends on you, that how you reach a text, how you analyze a text. Okay, if you analyze a text by considering in it the position of women, how the author has seen women, okay, how he has represented women, what kind of roles have been assigned to women, okay, and if you just pay attention to such things, then you can be called a feminist critic. Clear? You can be a formalist. So today, because I have already prepared myself for formalistic criticism. Clear? So what is formalism? Formalism का actual मतलब होता है that literature, whatever, whether it is a sonnet, okay, or it is a poem, a novel, or say any piece of writing. Clear? You need not to go to anything else to get the in-depth meaning of the text. Okay, only the form, the content is sufficient. Clear? And formalistic critics, they don't agree with each other. It started in Russia, that's why it is called Russian formalism. Clear? Write down it, that because it started in Russia, so we call it Russian formalism. Number one, there are two approaches, but both approaches are one and the same thing, because these formalistic critics, they consider that text should be analyzed in a very scientific manner by considering the text as an organic whole, okay, from botany point of view. You can consider, अच्छा, जब मैं botany की बात करता हूँ या organic whole की बात करता हूँ, I think most of you are aware about Aristotle, Plato, Horace, all these critics. देखिए, Prague linguistic circle is different. Clear? You should not get confused with Prague linguistic circle and Russian formalism. Prague linguistic circle means to say some of the major figures of Russian formalism, they shifted themselves to Prague, and from there they started understanding, or say analyzing the literary aspect, the linguistic aspect of a particular text. So we started calling them Prague linguistic circle. Clear? चलिए अब लिखिए, फटाफट से पॉइंट्स बनाइए. Now this class is seriously for those students who have taken admission. Clear? So write down Russian formalism. The time period is from 1910 to 1930. These 20 years are assigned to the studies of Russian formalism. Clear? Now I'm going to name certain major critics of Russian formalism. The first one is Viktor Shklovsky. Victor Shklovsky, Victor Shklovsky. Clear? Second one is Yuri Tyunyanov. Write down Yuri, Yuri Tyunyanov. Yuri Tyunyanov, Tynianov. I'm pronouncing in such a manner so that you can write the spelling. Third one is Vladimir Prop. Is a very famous name. Vladimir Prop. We have had more than 5 times questions on Vladimir Prop. Clear? Vladimir. Vladimir Prop. Kindly write yes and tell me if you are really attending the class. Okay? ये बीच में मत बोलिए सुनील जी, बख्तिन इस कैटेगरी में नहीं आते हैं. बख्तिन हैज स्टडीड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ओके, उनकी अलग थ्योरीज हैं. Okay, Vladimir Prop. Then Boris Eschenbaum. Boris, B-O-R-I-S. Boris Eschenbaum. B-S-O-R-I-S. Boris. E-I-C-H-E-N-B-A-U-M. Eschenbaum. Sorry. And
there are many others, but the major one I'm talking about, that is Roman Jakobson. I again remind you, you need to attend the class very sincerely, because I'm not going to upload it on YouTube today. Clear? Roman Jakobson. So I repeat these names and I start talking about formalism. It is also called Russian formalism. You can understand by I studied all the questions have been asked in last few years. That Russian formalism talks about the scientific analysis of a text. Okay, for them the form of the text is more important than the historical or cultural or artistic or biographical criticism. Okay, I repeat. अगर एक क्रिटिक ये कहता है कि मुझे टेक्स्ट के डीपर मीनिंग को समझने के लिए राइटर की बायोग्राफी की, उस किस कल्चर में वो रहता है, ओके, उसकी क्या हिस्ट्री है, उस कंट्री की क्या हिस्ट्री है, या कि आर्टिस्टिकली वो क्या कहने की एस्थेटिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस इन सब चीजों को दे डोंट स्टडी और दे डोंट पे अटेंशन टू, दे पे मोर अटेंशन टू द फॉर्म. क्लियर? एंड फॉर्म के अंदर अच्छा इसका काफी कुछ लेना देना न्यू क्रिटिसिज्म से भी है, बिकॉज यू ऑल नो दैट इन न्यू क्रिटिसिज्म दे कंसीडर दैट द टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक. राइट डाउन ऑटोटेलिक. एक थोड़ा सा एक एरो मार्क लगा लीजिए दैट फॉर्मलिज्म और रशियन फॉर्मलिज्म इज वेरी मच इक्वल टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म. ओके, British American criticism, new criticism, जिसमें they consider the close reading of the text. उनका ऐसा मानना है कि अगर आप टेक्स्ट को बहुत क्लोजली पढ़ोगे तो आपको टेक्स्ट बहुत कुछ कहता नजर आएगा. ओके, अभी हमारी क्या आदत है बताइए, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं. ओके, so most of you are not aware that who am I, which city I belong to, what had been my past. Clear? You can analyze what about my class by just looking at the content I'm giving you. Okay, the form in which my lecture is formed, how much concerned I'm about the students can be understood in between whenever I stop teaching. Okay, and keep noticing and checking whether you are getting it or not, in a very formal or informal manner. So it tells us that without going into the depth of the cultural, aesthetic, biographical details, social, historical detail of a particular writer, the text itself can open up, itself and give us so many different things which are embedded in that. Clear? So on up to an extent, Russian formalism and new criticism both are almost similar. Okay, there are different writers in Russian formalism and there are different writers in न्यू क्रिटिसिज्म. क्लियर? मैं एक बार फिर से नाम बोल रहा हूं कि ये 20 साल तक लगभग काफी ज्यादा फेमस रहा, एंड इट इज कंसिडर्ड दैट दिस फॉर्मलिज्म स्टार्टेड स्ट्रक्चरलिज्म. ये भी आप लिख लीजिए दैट बिकॉज दे स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, दे स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बिकॉज फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर. तो अगर वो स्ट्रक्चर की ओर ध्यान दे रहे तो समहाउ यू कैन से दैट लेटर ऑन दे एक्चुअली बिकेम द बेस टू स्टार्ट, और वन ऑफ इट्स ऑफशूट्स वाज स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, ये पता होना चाहिए. मैं एक बार फिर से नाम ले रहा हूं, विक्टर श्लोवस्की, श्क्लोवस्की. ठीक है, स्पेलिंग मैंने बोल दी थी. यूरी ट्यूनियानोव, व्लादिमीर प्रॉप. ठीक है, मैं इसको YouTube पे अपलोड नहीं कर सकता, आई एम सॉरी. क्योंकि देर आर सर्टेन लिमिट्स ऑफ अपलोडिंग माय रेगुलर लेक्चर्स ऑन YouTube. व्लादिमीर प्रॉप, बोरिस एशेनबॉम, ओके, एंड रोमन जैकबसन. अब आप लिखिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखिए. इट हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, जो मैं आपको बता चुका हूं, दैट इट बिकेम द कॉज ऑफ द ऑफशूट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर से फॉर्म, और फॉर्म को स्टडी करते करते एनी हाउ दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स. चौथा पॉइंट लिखिए, अंडर स्टालिन इट बिकेम अ पेजोरेटिव टर्म. ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में. आपने स्टालिन का नाम सुना है? स्टालिन. सो व्हेन इन रशिया these 4 or 5 critics I have just talked about, when they started talking about the form, and as you all know that when we study form of
a poem or a novel or any work of literature, then form, exactly in an indirect way we are starting to study the form of a government, also the form of anything. Okay, we start understanding the actual language. लैंग्वेज भी तो एक स्ट्रक्चर होता है ना. लैंग्वेज का मतलब हमेशा याद रखिए, लैंग्वेज का मतलब इज नॉट एग्जैक्टली द लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ऑल्सो लाइक आवर कल्चर इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स आर देयर. आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसके मिथीम को स्टडी कर लेते हैं. जैसे लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, बताइए, बताओ. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज? As you all can see that in the very beginning we can say that sentence is the smallest part, then we say that in the word is the smallest part, then we say that phoneme, if we are talking about the speaking aspect, then we say lexeme. Okay, if we are talking about the written part. Clear? So phoneme in the spoken part is the smallest part of language. If we are talking about the written part, then it is lexeme. Clear? So if we can study the lexeme of something, syllable is not the smallest part, sorry. Syllable is studied in prosody. Prosody is a different aspect. Okay, language is different aspect. Prosody का मतलब क्या होता है, that we are studying the language in the meter, the poetic language, the way language is used in a metrical form in poetry. That is called prosody. And how certain aspects have been made new to us by using poetry in language, that is called prosody. That is a different field. But I was simply asking you कि आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं. जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं तो हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैं अपने सारे नोट्स पढ़ दूं अभी तो आपको फॉर्मलिज्म तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दैट एनालिसिस और से एनालिटिकल माइंड इज नेसेसरी. एक बेसिक क्वेश्चन मुझे बताइए कि जब हम लैंग्वेज का या किसी पोएम के, नॉवल के फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उस फॉर्म को स्टडी करते करते हम लोग किसी गवर्नमेंट के फॉर्म को भी स्टडी कर सकते हैं? फॉर्म मतलब शेप, हाउ द थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड, हाउ सर्टेन थिंग्स have been given to us to in a particular form. Okay, like मोदी गवर्नमेंट है तो कैसे काम करती है. अगर आप लोग लिंग्विस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्टडीज के मास्टर बन जाओ तो यू कैन अंडरस्टैंड द वे somebody walks, the way somebody talks, the way somebody क्या कोई पहले एग्जांपल देके बात करता है, बाद में वो बेसिक चीज पे आता है, रूल्स पे आता है. तो ऐसे करके फॉर्मलिस्टिक या जो फॉर्मलिस्ट थे वो किसी भी वर्क के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लायक बन गए. तो जो स्टालिन थे, उस पर आपको क्वेश्चन आएगा, जो स्टालिन के लिए लिखा गया है कि अंडर स्टालिन इट बिकेम अ पेजोरेटिव टर्म, वो उसको पसंद नहीं करता था. मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मलिज्म एक ब्रांच ऑफ क्रिटिसिज्म निकल के आया, लेकिन इन 2 डेकेड्स के अंदर अंदर ही इसको थोड़ा सा इन अ वेरी डेरोगेटरी टर्म देखा जाने लगा. क्लियर? इसको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाने लगा. ओके, उसके बाद में आपको वन मोर पॉइंट, 5th पॉइंट राइट डाउन. इट इज नॉट अ यूनिफाइड मूवमेंट. Suppose they ask you a question that whether it is Shklovsky, okay, whether it is Prop, Eschenbaum, Jacobson, और अभी कोई और भी किसी क्रिटिक के नाम ले रहे थे. Can we say that when these critics are writing, then they were too much agreed on a particular aspect of analyzing a work of art or literature? So it was not so. Okay, all were different in their approaches. Clear? So the 5th point is no unified movement. It was not any unified movement. Clear? Write down then the 6th point. लिखिए Russian formalism has 2 branches. Russian formalism has 2 branches. The one is Opojazz, capital O P O J A Z. Kindly write Russian formalism लिख लीजिए और फिर 2 एरो मार्क लगा लीजिए. क्लियर? एक एरो मार्क में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में Opojazz, OPOJAZ. Clear? And the second was Moscow Linguistic Circle. Moscow Linguistic Circle. Clear? These are the 2 branches. Now let me tell you that this Opojazz was Society for the Poetic Language. Means they made a society. Opojazz was a society. In that society, they got together to understand scientifically in a very mechanical manner the poetic language. That what does poetry, in what way it changes the attitude, how it affects people.
Clear? So this formalism is very important from that angle. So Russian formalism has two branches. One is Opojaz, OPOJAZ. ये क्वेश्चन आ सकता है नेट में आपको. And the second one was Moscow Linguistic Circle. Okay? अब आप आ जाइए 7th point पे. And 7th point I will be talking about the basics. पहला पॉइंट लिखिए, 7 के अंदर A पॉइंट बना लीजिए, that it emphasizes on scientific method for studying poetic language. कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए that what exactly formalism does. So they consider that the poetic language can be studied as a scientific language. Clear? And they excluded, this is the same point, they excluded any psychological, cultural, historical methods to analyze a particular text. Kindly write yes if you understood what I have taught you so far. That Russian formalism, it has a particular agenda, okay? Though it was not a unified movement, but somehow, because they were intelligent people and they started studying, you know, the manifestos, you know, the things of government. So they started, looking in a very negative manner to these critics. आपको पता है हमारे समाज में कोई भी कवि है, अगर वो हमारी कमियां दिखाए, हमारी कोई फिल्म है जो हमारी कमियां दिखाए, if there is any poet, you know, who talks about negatively, if you talk to me, I will always be anti-establishment person. I will always be talking about something where, you know, people are using religion, using art to manipulate people. Clear? Yes, Kumkum Sharma. That is the question. That is the question. That is why that formalism faded, okay, during time. And yes, I think we are heading towards that time where we are we have put on the stake of reasoning and logic everything, you know, whatever artistic. But if I say, because I'm not well read in that field, so I cannot exactly say that scientifically something can be studied. Clear? Because but one thing is sure, that it is said that we have the IQ level of all the great scientists. If we measure that, if we talk about the IQ level of all the great scientists and artists, we come to know that hardly we have been able to utilize more than 15% of our mind. Clear? आपको याद है कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले I talked about a movie, उसका नाम था लूसी. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको लूसी मूवी के बारे में पता है? मैं 7th पॉइंट दोबारा बोल दूंगा ज्योत्सना. आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन राइट नाउ. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मूवी लूसी? There that girl has been some drug is inserted in her mind, in her by operating, I think, in her body, and then that matter is released and she's able to use, at the end of the movie we come to know that she's able to use 100% of her mind, and then she can relate herself with everything. But that is only a fantasy, because movies are based on imagination. Clear? And only romantic people, romantic writers, they consider that jahan na pahunche Ravi, wahan pahunche Kavi. They believe that through reasoning, we cannot reach up to a certain extent. Clear? 100% use morphine. शायद इसीलिए हमारे फिल्म स्टार्स जो हैं वो to become more artistic, they have been using drugs and all. But इसको आप लोग deny नहीं कर सकते that you start using your mind in a very in a high proficiency, I think, but अभी उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, because that is a different field. Clear? So मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि somehow जो कुमकुम ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम can we study art or say poetry in a scientific manner, then I think formalists and new critics, they consider आज कोई भी प्रोफेसर जो, अब तो वो प्रोफेसर्स रिटायर हो गए, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब हमने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था तो आवर प्रोफेसर्स यूज्ड टू टीच अस that they were bred on the
the classes of new criticism and formalism. It was a high fashion of that time, because by that time Derrida, structuralism or the studies of psychoanalysis, they were not very much popular, but the teachers used to teach the I.A. Richards theory of new criticism and these Roman Jakobson, and आज भी हम कई बार देखते हैं कि अभी स्ट्रक्चर की ओर काफी ध्यान हम लोग देते हैं, इंडिया में भी हम लोग काफी ध्यान देते हैं. तो when we are studying a structure, the dichotomy and all clear, I think we are trying to understand the inner structure of a particular poem, how the words have come up. Clear? I think yes. My answer is in a very ambiguous manner yes, that yes, we can do a lot much scientific study of a particular poetic language as well. चलिए 7th point में मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि they emphasis on scientific method for studying poetic language. उनका जो emphasis होता है वो scientific study को लेकर के होता है. Okay, and they exclude psychological, cultural and historical methods. अब आ जाइए 7th का second point. Literature must be the object of inquiry. From their point of view, formalists say that we should only target literature. We should not target the personal life. लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि how formalism ultimately vanished. Okay, and today we don't do any kind of analysis based on formalism. The reason is, अगर हम ऐसे बोलें जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, okay, but the other day you come to know that I am a smuggler or I am a druggist or I am a terrorist, then don't you think like whatever I'm saying, whatever I'm teaching becomes irrelevant? Don't you think so? In the same manner, all the stars, we are too much worried that whatever they show us on the screen, and in their personal life we are totally opposite people. Then how can they be our our ideals? Okay, how can they be our ideals? So I think somehow literature must be Russian formalists, they believed that literature must be the object of inquiry and we should not pay attention to the cultural, biographical and psychological aspects of the poet. Clear? We should not search for these things in literature. लेकिन मैं बता रहा हूं कि फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, बाद में लेटर ऑन दे वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट. 7th का थर्ड पॉइंट लिखिए. Third point for 7th, that priority should be given to the literary facts, okay, not to the aesthetic, philosophical or psychological facts. तो ये वही बात है. I think it is one step further, or say hair splitting of the same point, that priority should be given to the literary facts. Next point. अब आ जाइए कि अब मैं बात करूंगा विक्टर श्क्लोवस्की की. राइट डाउन. विक्टर श्क्लोवस्की जो हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा है जिसका नाम है आर्ट एज डिवाइस. ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, सो दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. विक्टर श्क्लोवस्कीज अर्ली टेक्स्ट आर्ट एज डिवाइस. क्लियर? आप वहां पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है प्रियम, आर्ट एज डिवाइस. अब वो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्ट एज डिवाइस जो विक्टर श्क्लोवस्की का ऐसे है, यस तो लिखिए ताकि मुझे पता चले यू आर अटेंडिंग द क्लास सीरियसली. If you write yes, I will be confirmed. It will be confirmed that you are there and attending the class seriously, and you are not the passerby. Okay, Jyotsna. Art as device. बताइए किसका लिखा हुआ ऐसे है? विक्टर श्क्लोवस्की. Okay, उन्होंने वहाँ पे I have just translated it from Russian. So they will ask you like what Russian word has been used by Victor Shklovsky for device. तो एक वर्ड लिखिए, रशियन वर्ड है PRIYOM, प्रियम. राइट डाउन, PRIYOM, प्रियम. अच्छा, आपको जो मैंने अभी थर्ड PDF भेजी है ना, बड़ी वाली, आई हैव गिवन यू अ वेरी लार्जर PDF फॉर लिटरेरी थियरी. ऑफलाइन क्लास को सब कुछ पहले भेजा जा चुका है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन क्लास नाउ. आप एक बार लिटरेरी थ्योरी के अंदर जाकर के आज और इस वाले टॉपिक को स्टडी कीजिएगा डिटेल में. आई वर्कड अ लॉट फॉर 20 years टू प्रिपेयर ऑल दीज PDFs. ओके, और उस PDF को जाके आप स्टडी कीजिएगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम द सेम PDF.
Clear? It is not present anywhere on internet. I have used different books for that. You know, ये जो पीछे आप पूरी लाइब्रेरी देख रहे हो ना, इससे भी ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी और भी कमरे में है मेरे पास. So I have more than 100 books of literary criticism, and I have used all these books, you know, to prepare these notes. ये जो PDF मैंने आपको भेजी है, तो उसको वो सीरियसली लीजिएगा, आपका JRF क्लियर हो जाएगा उससे. तो उसमें ये टर्म लिखिए प्रियम, PRIYOM, प्रियम. ठीक है. अब प्रियम जो वर्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रियम इज अ रशियन वर्ड विच इज एग्जैक्टली यूज्ड इन चेस, द गेम ऑफ चेस. तो वहां पे वो ऑप्शंस देते हैं कई बार आपको, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. लिखो, फटाफट से लिखो दैट द वर्ड डिवाइस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रशियन वर्ड प्रियम. लिखते जाओ. The word device in the essay Art as Device, which is written by Viktor Shklovsky, priom is actually a word which is used in chess, the game of chess. Okay, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, लिखो, a technical maneuver. A technical maneuver. MANEUVER. टेक्निकल maneuver का मतलब होता है आप कितना एफर्ट करके, कितना ओरिजिनलिटी के साथ कोई एक्शन लेते हो. ठीक है. और इसका कोई एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस. क्लियर? और इसका मतलब हो सकता है डिवाइस, इट कैन बी मेथड, इट कैन बी टेक्निक. सो प्रियम, they suppose they ask you the meaning of the Russian word priom used by Viktor Shklovsky in his essay Art as Device. उन्होंने कहा है कि आर्ट एक डिवाइस है, आर्ट एक मेथड है, आर्ट एक मैकेनिकल चीज है, आर्ट एक टेक्निक है. हम उसको जैसे बाकी चीजों को स्टडी करते हैं एक एक चीज को अलग करके, तो हम किसी भी नॉवल को, किसी स्टोरी को, किसी फोक टेल को, किसी पोएम को हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं और उसका मीनिंग एग्जैक्ट में बता सकते हैं. सो अगेन आपको वो एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज ये सारा जो एफर्ट है हम किस लिए करते हैं? बताओ ये सारा एफर्ट किस लिए? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग. हमेशा याद रखो एक चीज, टू सी इज टू नो, and to know means to control. एक ऐसी लाइन बोल रहा हूं मैं, लिखो, that you know how literary criticism is very important, because कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें उनका डीपर मीनिंग समझ में नहीं आता है. The reason behind that is, you know, we have not been developed, you know, in the art of reflection, in the art of thinking. और बहुत सारे एसेज इस पे लिखे गए हैं. सो आर्ट को हम लाइटली लेते हैं कई बार. यू नो, कोई चीज आपने देखी, ओके, आपने उसको लाइटली लिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि अरे उस चीज को नोबेल प्राइज मिल गया, या वो जो बुक है वो मैंने कभी पढ़ी थी. जैसे मेरे हिसाब से जो किरण देसाई है ना, किसी को पता है किरण देसाई का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? कैन यू टेल मी द फर्स्ट नॉवल ऑफ किरण देसाई? सपोज दे आस्क यू दिस क्वेश्चन. हलाबलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड. लिख लो चलो. किरण देसाई का एक ये जो पीडीएफ है वो केवल पेड स्टूडेंट्स को दी गई है. सो इफ यू आर पेड, इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन माय इंस्टीट्यूट इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, देन यू कैन डिमांड द पीडीएफ. इफ नॉट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. मेरे क्वेश्चन का जवाब दो. किरण देसाई हु वन इन 2006 द बुकर प्राइज. क्लियर? अरे भाई आपको मिल गई है शत्रुपा, बेटा आप उसको ध्यान से चेक करो, इसकी 420 पेजेस की है वो. चलिए, अभी तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस. लेटर ऑन व्हाट्सएप यू कैन टॉक टू मी. अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दो. आर यू अवेयर अबाउट द फर्स्ट नॉवल ऑफ किरण देसाई? दूसरा नॉवल तो सबको पता है, जो मैं लगभग हर दूसरे लेक्चर में नाम लेता हूं, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. इन माई लास्ट लेक्चर आई वॉज एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. In the same manner, the same writer has written Halabaloo in the Guava Orchard. अब बुकर प्राइज उसको मिलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी ज्यादा चीजें इस्तेमाल की हैं. ओके, इफ आई डू अ फॉर्मलिस्टिक और से फॉर्मलिस्टिक एनालिसिस, तो मुझे लगता है कि वो नॉवल जो है वो ज्यादा स्टैंडर्ड का है बजाय इसको जो उन्होंने बाद में लिखा. लेकिन अभी हम उस पचड़े में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप आगे बढ़िए. मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि आर्ट वाकई एक डिवाइस की तरह होता है? लेकिन विक्टर श्क्लोवस्की ने ऐसा माना, एंड ही सेड दैट टेक्स्ट और एनीथिंग विच इज आर्ट और अ पीस ऑफ आर्ट इज समहाउ कैन बी एनालाइज्ड. ओके, उसके बाद देखिए, लिटरेचर वॉज इवैल्यूएटेड. नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर वॉज इवैल्यूएटेड और कंसिडर्ड सोशियो पॉलिटिकल और साइको हिस्टोरिकल प्रोडक्ट. आपको पता है विक्टर श्क्लोवस्की से पहले या 20th सेंचुरी से पहले लिटरेचर वॉज इवैल्यूएटेड
और लिटरेचर वॉज कंसिडर्ड सोशियो पॉलिटिकल और साइको हिस्टोरिकल प्रोडक्ट। इसको पहले हम साइको हिस्टोरिकल या सोशियो पॉलिटिकल प्रोडक्ट के तौर पर देखते थे, ठीक है। बट व्हाट इज लिटरेचर, हाउ इट वर्क्स, लिखो ये क्वेश्चन पूछते हैं फॉर्मलिस्ट कि व्हाट इज लिटरेचर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिटरेचर। these different critics they try to define that what is literature, okay, how does it work, okay. These formalistic critics tried to answer this question, but later on we never tried to understand how literature affects. Literature is there, okay, how it came into being, what is there inside it, okay, though all these studies were there, okay, but it was not studied that how it affects, how it changes, how it does it work. अब आगे बढ़िए, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, that as I told you that all these formalistic critics, these formalists, they never agree on a particular point, but one general point is, लिखो, one general point is similar to all of them. One general point is similar to all of them, that is, poetic language possesses specific properties which can be analyzed as such. Poetic language मतलब जरूरी नहीं है कि poem की language. Poetic language means a language of prose also, okay, language of because prose also is a structured one. So the language of art or language of literature, it possesses specific properties which can be analyzed as such, ठीक है। अब उन्होंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म दिए, आई एम कमिंग ऑन दैट, लिखो उस टर्म का नाम, दैट इज डीफेमिलियराइजेशन। राइट डाउन, द फर्स्ट टर्म टुडे इज डीफेमिलियराइजेशन। डीफेमिलियराइजेशन मींस ऑपोजिट ऑफ, अब देखिए, एक होता है फेमिलियर, एक होता है अनफेमिलियर, एक होता है डीफेमिलियर। अभी एक स्टूडेंट मुझसे काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जितने भी अलग अलग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, they were asking me many questions, their queries and all. शत्रुपा, मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, वो इसलिए कि वो कुछ एक वो मैं आपको आज दे दूंगा, ठीक है। अभी बात चल रही है व्हाट इज डीफेमिलियराइजेशन, लिखो artistic technique of presenting to audiences, write down, artistic technique of presenting to audiences common things in an unfamiliar or strange way. Artistic technique of presenting to audiences common things in an unfamiliar or strange way, so that the audience gain a new perspective, so that the audience gain a new perspective and see the world differently. This is the definition of defamiliarization. You can easily understand this. I repeat, first of all, for those who have not written it, artistic technique of presenting to audiences common things in an unfamiliar or strange way, so that the audience gain a new perspective and see the world differently. See the world differently. साधारण चीजें, कॉमन चीजें जो हम रोज देखते हैं, हमने किसान को अपने गांव में देखा, ओके, सेम किसान जिसके ऊपर कोई कुर्ता नहीं है, बनियान नहीं है, केवल लॉयन क्लॉथ यानी कि धोती पहन करके, काला सा, झुर्रियां पड़ी हुई है और दम लगाता हुआ जा रहा है, एक खेत में हल जोत रहा है। दैट इज समथिंग वेरी फेमिलियर सीन, यू नो, फॉर अ स्टूडेंट ऑफ विलेज। बट वही एक बहुत बड़ा कलाकार शाहरुख खान ये एक्टिंग अगर अपने खेत में, अपनी फिल्म में कर रहा है, हालांकि उसने कोई किसान नहीं बना किसी भी फिल्म में, वो दुर्भाग्य है ये देश का कि अगर वो कोई भी कलाकार ये एक्टिंग कर रहा है, तो वो सेम आदमी जो एसी कार में रहता है, एसी घर में रहता है, लेकिन अब वो एक्टिंग करके पर्दे पर जब हमारे सामने आ रहा है, तो somehow certain things are added to them, okay, that the same thing which is familiar becomes defamiliar to unfamiliar। का मतलब यहाँ पे मैं यूज करूंगा कि अनफेमिलियर का मतलब होता है कि ऐसा लगेगा कि वो
वो मैं जानता हूं लेकिन वो नहीं है, इसको बोलते हैं डीफेमिलराइजेशन। ये टेक्निक होती है। ओके, लिखो दिस टर्म वॉज यूज्ड इन द एसे आर्ट एज टेक्निक। अब ये दूसरे ऐसे का नाम ले रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। दिस टर्म डीफेमिलराइजेशन, okay, it was used in the essay art as technique by Victor Shklovsky। अच्छा बताइए, इससे पहले वाले में कौन से वाले ऐसे का नाम लिया था? आर्ट एज डिवाइस, जिसमें डिवाइस के लिए रशियन वर्ड कौन सा था बताओ? प्रियम। क्लियर? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डीफेमिलराइजेशन। दिस टर्म वाज यूज्ड बाय विक्टर श्क्लोवस्की इन हिज एसे आर्ट एज टेक्निक। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें उन्होंने कौन से पर्टिकुलर ब्रिटिश नॉवेलिस्ट को यूज किया है आर्ट को टेक्निक के तौर पर या डीफेमिलराइजेशन समझाने के लिए? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लिखो, लॉरेंस स्टर्न का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने ट्रिस्टम शैंडी लिखा है। लिखिए, जब हम लोग 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं ना, तो स्मॉलेट का, लॉरेंस स्टर्न का, फील्डिंग का, रिचर्डसन का, ये 4 नाम आते हैं। कौन कौन से 4 नाम लिए बताओ मैंने? रिचर्डसन, फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट and this Lawrence Stern. These are called the 4 pillars of, or say 4 wheels of English novel. ठीक है, ये कई सारे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। So what I was talking about कि Victor Shklovsky, when he wrote his essay Art as Technique, in that particular essay he has used Lawrence Stern's famous novel Tristram Shandy। ट्रिस्टम शैंडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने जो आपको पीडीएफ दी है मेजर नॉवेल्स की, एक आपको, जिसमें आई थिंक मोर देन 150 नॉवेल्स हैव बीन कवर्ड। इफ यू लुक एट दैट पीडीएफ यू विल फाइंड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ ट्रिस्टम शैंडी ऑल्सो। इस पे हर दूसरे नेट में क्वेश्चन आता है। अच्छा, उसमें राइटर ने क्या किया है बताओ? सेम तरीके से नॉवल लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स राइटर ने यूज किए जिससे इट बिकम्स समथिंग स्ट्रेंज फॉर अस। जैसे बीच के पेजेस गायब हो जाना, किसी किसी पेज में वर्टिकली हाफ पेज पे लिखना, अचानक से जो नैरेटर है वो बदल जाना, इंटीरियर मोनोलॉग का इस्तेमाल इन्होंने बहुत पहले कर दिया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया, जबकि आपको मालूम है कि इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज यूज्ड लेटर ऑन when 20th century started, but this was used I think 150 years before, when stream of consciousness and all these things were started by the modernist writers. Clear? So these are the techniques by which the familiar things are made unfamiliar to us. Okay, this is called defamiliarization. Okay, अच्छा मुझे आपको एक चीज समझानी है कि कोई चीज को डीफेमिलराइज कैसे करते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में जिनको कल्चरल जैमिंग वर्ड आता है? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट कल्चरल जैमिंग? JAMMING। आपने कभी देखा है? आपको ये क्वेश्चन, मुझे लगता है अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, क्योंकि सारे दिन आप लोग फेसबुक पे मीम्स देखते हैं। सो हैव यू एवर स्टडीड लाइक व्हाट इज द basic aim of meme, and meme what does it do? मीम का काम क्या है? ये जो ट्रॉलिंग होती है ये क्या है? इसको बोलते हैं कल्चरल जैमिंग। लिखो अपनी कॉपी में एक टर्म लिखिए, कल्चरल जैमिंग, JAMMING। यस लिख के मुझे बताइए दैट यू फाइंड द क्लास इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब टुडे to make you more serious about the class. Even I will delete it from YouTube also, this Facebook also, just after the completion of the lecture, so that you people can become serious. I have qualified net once, but till think I've known many things from you. ऐसा होता है मिस्टर जमीनूर, आपको पता चल जाएगा कि एक बार नेट करना, हम उसको एक फ्लूक मानते हैं, तुक्का मानते हैं। That's why I have qualified for 14 times and 3 times JRF. You will be surprised. I was not satisfied, with my one MPhil, and even I'm planning to do next PhD also in linguistics. I feel that क्लास अटेंड करने, क्लास लेने से पहले मुझे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं आता है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो आई थिंक, हालांकि ये मैं बड़प्पन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को ऐसा लगता है, बट इट्स अ फैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाकई कुछ नहीं आता।
और एवरी टाइम दैट चैलेंज, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है ना कि इतनी बार नेट क्यों किया है, दूसरों के चांसेस क्यों मारे हैं, उनको ना हंगरी चले जाना चाहिए। हंगरी एक कंट्री है, मैं वहाँ के प्रोफेसर से मिला हूँ सेमिनार में, इंटरनेशनल में। एवरी 5 years दे हैव टू राइट अनदर PhD, 2 PhD करते हैं वो लोग, एंड दे हैव टू अपीयर इन डिफरेंट एग्जाम्स सो दैट टू प्रूव देमसेल्व्स दैट दे आर अपडेटेड। तो जिन लोगों को ये गलतफहमियां है ना कि भारत में ये सब नहीं होने वाला है, वो दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी वो दिन आ जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा। हु कॉइंड विक्टर श्क्लोवस्की कॉइंड द टर्म डीफैमिलियराइजेशन, ज्योत्सना। चलिए पहले कल्चरल जैमिंग लिखिए ताकि अपनी क्लास आगे बढ़े। कल्चरल जैमिंग देखिए, कल्चरल जैमिंग का एक्चुअल में दूसरा मतलब होता है गुरिल्ला कम्युनिकेशन। राइट डाउन, इट इज अ गुरिल्ला कम्युनिकेशन। गुरिल्ला जानते हो, गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर क्या होती है? चुपके से, व्हेन यू आर in a very treacherous manner, in a very hidden, in a very subtle, in a very noticingly, suppose you change something, clear, then पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पे जाकर के यू जस्ट चेंज सम स्पेलिंग। तो इसका क्या मतलब है? दैट you have given your voice to something which was a kind of either advertisement, okay, or a handbill, or a kind of a kind of communication. तो कल्चरल जैमिंग को गुरिल्ला कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लिखो, इट इज अ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय एंटी कम्युनिस्ट सोशल मूवमेंट। मुझे यस लिख के बताइए कि आप लिख रहे हैं कि आप केवल ओकेजनल वॉचर हैं, जो चलते फिरते मेरी यूट्यूब चैनल पे आ जाते हैं और देखते हैं, सॉरी फेसबुक पेज पे कि कौन क्लास ले रहा है। यू शुड नॉट बी लाइक दैट। you should write it sincerely because you are a regular student. कल्चरल जैमिंग इज अ प्रोटेस्ट। मैं डीफैमिलियराइजेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब वो एग्जांपल दे रहा हूं तो मैंने उसमें और सारी चीजें लिख ली ताकि आपको ज्यादा नॉलेज मिले। लिखो, इट इज अ कल्चरल जैमिंग, इट्स वन वे ऑफ डीफैमिलियराइजेशन। इट इज अ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय एंटी कंज्यूमरिस्ट सोशल, एंटी कंज्यूमरिस्ट, गलती से मैंने शायद एंटी कम्युनिस्ट बोल दिया था। इट्स एंटी कंज्यूमरिस्ट सोशल मूवमेंट, ओके, टू डिसरप्ट, DISRUPT। डिसरप्ट का मतलब होता है बीच में किसी चीज को रप्चर कर देना, चेंज कर देना। जैसे आपको पता चलता है कई बार के टीचर बोल रहा है और आप बीच में अपनी बात जब बोलते हो तो आप एक तरह से उस लेक्चर को रप्चर कर रहे हो। क्लियर? डिसरप्ट और सबवर्ट। सबवर्ट एक नया वर्ड है, सबवर्ट, SUBVERT, सबवर्ट मीडिया कल्चर, subvert media culture and its mainstream cultural institutions। रुक जाओ, मैं फिर से बोलता हूं। I am giving you an example of defamiliarization, okay? Defamiliarization का एक एग्जाम्पल है कल्चरल जैमिंग, जिसको बोलते हैं। कल्चरल जैमिंग के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है गुरिल्ला, GOUERRILLA, गुरिल्ला कम्युनिकेशन, ओके। मीम इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सोशल ग्राफिटी जो होती है, बाथरूम के अंदर लड़के जो अलग अलग पिक्चर्स बना देते हैं, किसी लड़की का फोन नंबर लिख के आ जाते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे मेल लिखा हुआ है तो ई हटा दिया तो मैल बन गया, समझे। कभी एम हटा दिया, मतलब कि मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ओके। तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होता, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं सबवर्ट करना। अच्छा, कितने बच्चे क्लास में जिनको सबवर्ट या सबवर्जन का मीनिंग आता है? अगर आपको ये वर्ड नहीं आते हैं, बिकॉज दीज आर क्वाइट टेक्निकल जार्गन इन द फील्ड ऑफ कल्चरल थियरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, if you try to understand these terminologies, only then you will be able to understand literary criticism। कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। Do you know the meaning of subvert? मना कर दीजिए ताकि मैं समझा दूं फटाफट से। This is the right way of learning. If you keep checking your mobile on Google and then you answer, before that if you say yes or no, I will explain it। subvert का मतलब किस किस को आता है? कल्चरल जैमिंग की जगह लगता है यहां पर फ्रीज हो गए हो, जैम हो गए हो। आपके जवाब के इंतजार में आपका अपना
सुनील निषाद ने जवाब दे दिया है नो। लिखो सबवर्ट का मतलब होता है टू, तो मैं पहले आपको अपने अपने तरीके से समझाता हूं, मीनिंग तो मैं आपको दे ही दूंगा। हाँ, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। भावना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, आपने कभी किसी बच्चे को डांटा है? आपने एक बच्चे को डांटा, खबरदार है दोबारा खेलने गया है तो मान लीजिए कि वो नीचे मुंह करके आपको मुंह चिढ़ा रहा है ऐसे, सोचो अब वो क्यों कर रहा है ऐसा। आपने कभी देखा है? हम ऐसा करते हैं, बचपन में भी हमने किया है। वो जो पावर हमारे ऊपर आ रही है ना, उस पावर को हम फेशियल एक्सप्रेशन से या दोबारा वो गलती करके उस पावर को हम लोग तोड़ देते हैं। हम उस पावर को डिस्टेबलाइज कर देते हैं, उसको बोलते हैं सबवर्ट कर देना। समझे? सबवर्ट का मीनिंग समझो पहले। मैंने ऐसे पढ़ाई नहीं की है जैसे तुम लोग करते हो। मैंने हमेशा पढ़ाई ऐसे की है, मैंने हर वर्ड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। उसका नतीजा क्या है कि मैं बहुत गहरी से गहरी किताब भी समझ जाता हूं। ओके, मैं कई बार आपको ये एग्जांपल दे चुका हूं कि मैंने बड़े बड़े क्रिटिक्स को, बड़े बड़े राइटर्स को सुना है, वो साफ कहते हैं धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, डोंट प्रिटेंड दैट यू आर इंटेलिजेंट। मैं कहां इंटेलिजेंट हूं? इसीलिए मैं बार बार एग्जाम देता रहता हूं। कहीं कहीं फेल हो गया तो मैं सोचूंगा कि मेरे को कम आता है। इसीलिए हमें सीखते रहना चाहिए। सबवर्ट का मीनिंग क्या बताया मैंने, बताओ? टू मिनिमाइज, ओके, टू कैंसल द पावर। पावर जो हमारे ऊपर होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी का कहना नहीं मानते हैं, या मान लीजिए हम उसको पलट के कोई जवाब देते हैं, ठीक है, मिमिक्री करते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ उसको मिटा देते हैं, प्रिंसिपल साहब का के ऑफिस के बाहर कुछ फेंक के आ जाएंगे, प्रिंसिपल साहब की नकल उतारेंगे, किसी टीचर का कोई नाम रख देंगे क्लास के अंदर। व्हाई? बिकॉज दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑन अस, so we have our own techniques of subverting that. Okay, and that is very natural. हमेशा याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज नेचुरल। अब बात आती है कि कंज्यूमरिस्ट जो सोसाइटी डेवलप हो गई है, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को एक सेकंड के लिए भी क्रिकेट पसंद नहीं है, एक सेकंड के लिए भी। और मुझे ये जो जितने भी फिल्म स्टार्स हैं ना, बड़े वाले, जो जिनको बहुत वैल्यू मिलती है आजकल, वो मुझे पसंद नहीं है। और नेता तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मालूम है 3 लोग क्या करते हैं? They have been made superior in the last 40 years. आपको ताज्जुब होगा कि 40 साल पहले एक फिल्म स्टार को तनख्वाह मिलती थी, वो ज्यादा रिच नहीं था, तो उसकी आंखें गुद्दी पीछे नहीं आती थी, वो इतना ज्यादा हमारे ऊपर हावी नहीं होता था, वो ड्रग्स लेने की सोच ही नहीं सकता। इन 40 सालों में हमने जो बड़े बड़े थिएटर्स होते थे उनको तो टूटते हुए देखा है, और मल्टीप्लेक्स आ गए जहां पे 200 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है। वी हैव बीन मेकिंग देम रिच। नेता आपको पता कैसे होते थे? एक एक्सीडेंट होने पर रेलवे मंत्री त्यागपत्र दे देता था अपनी सीट से, इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्रिकेटर्स कैसे होते थे? उनको भी इतने पैसे नहीं मिलते थे, तो वो इतना डेडिकेटेड होते थे अपने खेल को लेकर के, एंड दे डिड नॉट डू एनी एडवर्टीजमेंट। कपिल देव और गावस्कर ने ये सब स्टार्ट किया है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमरिज्म आ गया, कंज्यूमरिज्म इतना हैवी हो गया, चारों तरफ हमें चीजों को कंज्यूम करने के लिए कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, यू नो, दे आर प्रेशराइजिंग अस। सो इट इज अ पावर ऑन अस. So how we change the power, how we question the power, how we subvert the power, how we cancel the power, how we this culture is jammed. अच्छा, कई बच्चों को ये भी पता नहीं है कि कल्चरल जैमिंग वर्ड कहाँ से आया। आपको पता है रेडियो, जैसे वो फिल्म आई थी ना रंग दे बसंती, तो वो जो रेडियो का प्रसारण हो रहा था टेलीकास्ट, उसके अंदर उन्होंने जाकर के और उसको संभाल लिया, तो उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए उसको जैम कर दिया। इसीलिए जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर कोई अपनी फ्रीक्वेंसी अगर डाल के, और जो मेजर फ्रीक्वेंसी है उसको अगर डिसरप्ट कर दे, उस पावर को कैंसिल कर दे, वहां से ये वर्ड आया। तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, सो इट हैज बीन अ वेरी रीसेंट वर्ड। इन 1980 आई थिंक इट वाज कॉइंड बाय, लिखो, इट वाज कॉइंड बाय डॉन जॉयस, DON, डॉन जॉयस। कल्चरल जैमिंग वर्ड डॉन जॉयस ने यूज किया था। ओके और कल्चरल जैमिंग क्या करता है? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज द मेथड्स ऑफ डोमिनेशन। राइट डाउन, व्हाट डज कल्चरल जैमिंग डज, व्हाट डज कल्चरल जैमिंग डू? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज द मेथड्स ऑफ डोमिनेशन। मेथड्स ऑफ डोमिनेशन। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कोई मीम अगर आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर राइटिंग सम क्या बोलते हैं उसको, आजकल ट्रॉल करते हैं हम लोग। ओके, तो हम किसी को ट्रॉल कर रहे हैं, तो यू नो दैट पर्सन
because of some power has been exercising his or her power on us, and real power is with the public, you always know that. Okay, so he or she culturally jam that power. Okay, चलिए मैं एक बार फिर से कल्चरल जैमिंग की डेफिनेशन बोल देता हूं, क्या पता वो पूछ लें। देखो, इट इज अ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय एंटी कंज्यूमरिस्ट सोशल मूवमेंट टू डिसरप्ट और सबवर्ट मीडिया कल्चर and its mainstream cultural institutions of media, okay, including corporate advertisement और corporate advertising। कॉर्पोरेट का मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो बड़े बड़े मल्टी स्टोर्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट, ये जो जिसको अपन बड़ा बिजनेस बोलते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ऑफ लेट रिसेंटली दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज कम अप एंड exercise its power on the common man। वरना हमेशा ध्यान रखिएगा, विद द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉर्पोरेट कल्चर आता है। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? बड़ी मछली होता है, धीरे धीरे छोटी मछलियों को वो खा जाता है, ठीक है। लेकिन हमेशा वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, वी शुड अंडरस्टैंड दैट थ्रू फॉर्मलिज्म, थ्रू ऑल दीज स्टडीज, वी आर लर्निंग लाइक हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू डीफेमिलराइज सर्टन थिंग्स। ओके, अब वापस से आ जाते हैं। देखो, फॉर्मलिस्ट्स डिस्क्रिमिनेट सिस्टमैटिकली बिटवीन आर्ट एंड नॉन आर्ट। लिखिए, फॉर्मलिस्ट्स जो होते हैं, ये बीच की स्टडी थी कल्चरल जैमिंग, ये कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया मैंने। फॉर्मलिस्ट्स डिस्क्रिमिनेट सिस्टमैटिकली बिटवीन आर्ट एंड नॉन आर्ट, आर्ट एंड नॉन आर्ट, सो दे एनालाइज डाइकोटमीज एंड स्ट्रक्चर्स। डाइकोटमी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि फॉर्मलिज्म जो होता है, ये इसने क्या किया कि हर चीज के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स ढूंढ लिए। ओके, एंड स्ट्रक्चर्स आर, यू ऑल नो, आर डाइकोटमीज, मेल फीमेल, डे नाइट, रिच पुअर, क्लियर, हैव्स एंड हैव नॉट्स, एक डाइकोटमी है, तो वो उसको स्टडी करते हैं। तो आर्ट को, और ये तो आर्ट है और ये नॉन आर्ट है। ओके, सो बाय कंसीडरिंग इट एज अ टेक्निक or by using it as an analytical power, by using certain techniques of theirs, उन्होंने ऐसा किया। ओके, एग्जाम्पल देता हूं आपको, लिखो, फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। कितने बच्चे क्लास में, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, स्टोरी और प्लॉट में डिफरेंस पूछा गया है। तो विक्टर श्क्लोवस्की ने स्टोरी को तो कहा है फेब्युला। लिखो, स्टोरी लिख लीजिए, पहले स्टोरी के नीचे लिख लीजिए एरो मार्क लगा के फेब्युला, ठीक है, फेबल से बना है फेबुला, और फेबुला के नीचे लिखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। लिखते जाइए, यस लिख के बताओ पहले, क्या आप लिख रहे हो, पहले यस लिख के बताओ। because of the weak internet, it sometimes the screen jams, and I feel that you are looking at me and I keep teaching sometimes, and later on I come to know that we are discontinued or disconnected. Kindly write yes so that I can feel that we are connected. Then I will repeat my point. Okay. 2 लोग तो मुझे देख ही रहे हैं, 3 तो कम से कम देख ही रहे हैं, 4 देख रहे हैं, वाओ, आई एम सो लकी, 5 देख रहे हैं, ठीक है, जितने यस उतने स्टूडेंट्स। चलिए दोबारा बताऊं, आर्ट और नॉन आर्ट को वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं। फिर लिखिए स्टोरी, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ हाउ विक्टर श्क्लोवस्की डिफरेंशिएटेड बिटवीन द थिंग्स। फॉर एग्जांपल, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। तो आपको अजीब लगेगा कि कैन देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड प्लॉट? यस। फेबुला के जस्ट नीचे लिखिए एरो मार्क लगा करके, स्टोरी के नीचे फेबुला, फेबुला के नीचे लिखो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जैसे अभी पैदा हुआ, उसके बाद राजकुमार पढ़ने गया, उसके बाद वो वहां गया, उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बाद उसके पत्नी आई, उसके बाद वो पत्नी नाराज रहने लगी, उसके बाद दूसरी पत्नी आई, दूसरी पत्नी खुश रहने लगी, फिर बच्चे हुए। ओके, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसके नीचे एरो मार्क लगा के लिखिए द रॉ मटेरियल ऑफ अ स्टोरी। रॉ मटेरियल ऑफ अ स्टोरी, raw, R-A-W, raw material of a story. This is, on one hand, this is story. Clear? अब लिखिए प्लॉट, सामने लिखिए प्लॉट, P-L-O-T, प्लॉट।
प्लॉट को उन्होंने क्या बोला है? स्यूजेट लिखो, स्यूज है SJUZHET, SJUZHET, स्यूजेट, स्यूजेट लिख के बताओ चलो, SJUZHET। क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, ये फिर से रिपीट हो सकता है इस साल अभी। स्यूजेट, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, चलो आई एम जस्ट टीचिंग बिकॉज आनंद फानन में बहुत सारी चीजें पढ़ाने से तो अच्छा है ना कि आप सिस्टमेटिकली जो भी चीज पढ़ो उसको पूरा पढ़ो, बाकी तैयारी तो जितनी आपकी है उतनी मेरी है। स्यूजेट, SZUZHET, आप लोग लिख के बताओ पहले मुझे स्यूजेट। शिवा वेंकटपति, आर यू वॉचिंग रियली मी? ओह दैट्स ग्रेट। स्यूजेट, ZHET, भावना स्पेलिंग में H गायब है। स्यूजेट, डी ज्योत्सना, इसमें डी नहीं आएगा, लास्ट में टी आएगा, टी, SJUZHET, स्यूजेट। पहले आप प्रॉमिस करो कि आपको मैंने जो PDF भेजी है यू विल जस्ट, हाँ ये प्लॉट के नीचे लिखवा रहा हूं मैं, या मिस्टर शिवा दिस इज प्लॉट, प्लॉट के नीचे लिखिए स्यूजेट, ओके। उसके नीचे लिखिए एरो मार्क लगा करके इवेंट्स इन नॉन क्रोनोलॉजिकल वे, इवेंट्स इन नॉन chronological way, events in non-chronological way, okay। and फिर उसके नीचे एरो मार्क लगा के लिखिए the way a story is organized, the way a story is organized, that is Suzette, okay। so I repeat, एक तरफ स्टोरी है, एक तरफ प्लॉट है, ओके। दिस इज द वे दे हैव dichotomized, they have given a structure, they have given a certain way of analyzing by dividing the things like a machine in a mechanical manner, okay। so story is called, likho, story is called fabula, fabula means chronological sequence, okay, or the raw material of story. On the other hand, it is plot, which is called sujet, SJUZHET, which is events in non-chronological way, okay। the way story is organized, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। आपने जैसे हम इडिपस प्ले पढ़ते हैं तो आपको पता है इडिपस जब स्टार्ट होता है तो इडिपस बड़ा हो चुका है, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन द राइटर हाउ ही ऑर्गेनाइजेज अ प्लॉट। अच्छा, मैं इसको एरिस्टोटल से लिंक कर देता हूं कि प्लॉट कैसे भी लिंक हो बट उसमें देयर शुड बी प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, ओके। बाय लिंकिंग पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, okay, you link the plot in such a way whether it is chronological or non-chronological, you just arrange the things, but for that you should have a raw material with you, at least you should have certain events with you, so that event which is there in your mind, that is called story, and when you arrange it in a particular manner, whether आप मुझसे इस व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा because I don't give my study material free of cost, clear? So my number is, my WhatsApp number is 9828402032. I'm sorry, in between I'm answering the questions. चलिए पहले बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? आप लोग yes लिख के बताइए, have you really got to know about fabula and Suzette? Did you really understand that story is always there in the mind, clear? And then we arrange them in a particular manner. It can be non-chronological. It is not necessary that we show first of all that the prince is born, okay, as we all know that the events, many dramatists, many novelists, they arrange the sequence of the story in such a manner, in a non-chronological order, that ultimately we get to know what happened, okay. But that is called art, and that is the way of defamiliarization. In this way, by non-chronologically ordering things in a plot, which is called Suzette, okay, that is the way of defamiliarizing. The same familiar events have been shown in such a manner that we are bound to our seats and we watch these events. Clear? अच्छा, अब आपको एक छोटी सी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, that how many of you are aware that E.M. Forster has also talked about story and plot, and what definition he has given?
ई एम फोस्टर। मैं एक बात और बता दूं, मैं पिछले लेक्चर में एक चीज लास्ट में गलती हो गई थी शायद, ईस्टवर्ड हो मैंने बोल दिया था। ईस्टवर्ड हो जो है मेरे ख्याल से, या वेस्टवर्ड हो है, जो वेस्टवर्ड हो जो मेरे ख्याल से ड्रामा है वो इसका बेन जॉनसन का ड्रामा है। ओके, सो हॉवर्ड्स एंड जो है दैट इज द आंसर फॉर ओनली कनेक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो मेरे को लगता है मेरे से गलती हो गई थी शायद पढ़ाते वक्त, मेरे मुंह से आउट ऑफ समवेयर दैट दैट ड्रामा केम इनटू माय माइंड। मस्ट बी, आई थिंक आई वाज प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर दैट। चलिए, अभी पहले मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट ई एम फोस्टर्स बुक द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल? The aspects of the novel. Okay, in that book he has talked about the difference between story and plot. My question is, what is his difference between the story and the plot? बताइए। अगर नहीं पता तो नो लिख दो ताकि मैं फटाफट बता दूं। If you don't know, you can write no. Yeah, aspects of the novel written by E.M. Forster, which were actually the lectures he delivered in the Cambridge University, and then that was arranged in the 7 parts of that book, which is now very famous and mandatory for every graduate of literature. How many of you are aware about the difference? Okay, you don't know the difference. Okay, let me tell you. लिखो तो इसको लिखो। स्टोरी के बारे में उन्होंने कहानी बताई है कि there was a king and there was a queen. Okay, and the king died and then the king died and the queen died and the story ended. This is story. Okay, and now what is the definition of plot he gives by an analogy? There was a king, there was a queen. Okay, the king died and the queen died of grief. This is plot. फिर से सुनो ध्यान से। E.M. Forster has differentiated between the story and the plot by simply narrating 2 events. पहले सिर्फ सुनो। E.M. Forster ने स्टोरी के बारे में क्या कहा है? स्टोरी के बारे में कहा है, there was a king, there was a queen, the king died and then the queen died and the story ended. This is story. Only events occurred. Okay, no cause. Okay, अब कोई बात नहीं सिवा, I'm telling you about that. Okay, you just listen to me carefully. And what is the definition of plot? Write down. There was a king, there was a queen, the king died and then the queen died of grief. Now what is the difference between the 2 stories? Tell me. What is the extra word I'm using between the 2 stories? In the plot, I'm simply adding how the queen died. There I'm talking about the cause. Okay, so the plot is always causal. C-A-U-S-A-L. We call it causal. C-A-U-S-A-L. Causal. Yes, लिख के बताइए, you're writing causal. C-A-U-S-A-L. Causal. Clear? A plot is always causal. Yes, Jyotsna. That in the plot section, I'm saying the king died, then the queen died. Okay, there was a king, there was a queen, the king died and the queen died of grief. Now here I am adding cause. So this is called plot, and novels have plots and the stories do not have. If a story has a causal plot, causal is a different word. There is a word casual. Don't just see the spelling. There are 2 different spellings. Casual is a different spelling. I'm talking about causal. C-A-U-S-A-L. Okay, so you need to understand about this basic difference, that if you start talking about all these things. Now Siva was telling me that he simply came to know about the round character and the flat character, or one-dimensional character or two-dimensional characters. These are the famous things and can be asked, and the PDFs I have supplied you with, I have given everything in detail in all these PDFs. If you look at them only, I think you will not require any lecture. Okay, you will qualify your GRF in one go. But the first and the foremost condition is that you start reading every single line. मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसे टीचर्स हैं जो
बहुत ही सिंपल वाले पॉइंट्स की बुक्स लिख करके और इतना ज्यादा फेमस हो रहे हैं, इतरा रहे हैं, मैंने किसी को उससे नेट क्लियर करते नहीं देखा, ना ही जीआरएफ क्लियर करते, क्योंकि केवल पॉइंट्स से नेट क्लियर नहीं होती है। द एग्जाम इज रियली वेरी टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। जिस तरह के क्वेश्चन सेट एग्जाम में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन नेट में नहीं आते हैं। इट्स ऑलवेज अ बिग सरप्राइज फॉर यू। अगर जिसकी एक बार नेट क्लियर हो जाती है उसकी दूसरी बार मोस्टली नहीं होती है। ओके, सो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली, एंड इफ यू वांट टू चेक योरसेल्फ यू शुड अपीयर इन द नेट एग्जाम ट्वाइस। आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ पढ़ा, इतनी मेहनत की है साल भर, उसके बावजूद ये एग्जाम कई बच्चों का क्लियर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दिस एग्जाम इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एंड डिटेल्ड नॉलेज के लिए डॉक्टर मुकेश पारिक इज द परफेक्ट चॉइस। कम एंड ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लासेस, keep spreading my word, keep sharing my messages, okay, so that the sincere student can join us and we can really spread knowledge. ठीक है, so this is all about your formalism, okay, and cultural jamming, the stories of plot and all, ये सब मैंने आपको बताया आज की क्लास में। आज की क्लास काफी लंबी चल गई। क्या मैंने आपको ग्रेट प्रेजेंटेशन, ओह थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आप इसको आज YouTube पे अपलोड नहीं कर रहा हूं, और मैं इसको आधे घंटे और रखूंगा फेसबुक पे, इसके बाद आई विल डिलीट इट। दिस आई एम डूइंग एज अ स्ट्रैटेजी टू मेक माई लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, सो दैट स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम एंड दे स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास सीरियसली। ओके, थैंक यू वेरी मच।